Let me share my screen. Okay, so dictionary comprehension, has anyone tried डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन ट्राई किया है किसी ने? हम्म. ओके, आर यू एबल टू क्रिएट एनी प्रोग्राम? कोई प्रोग्राम आप बना रख सक रहे हैं और बना सकते हैं क्या यूजिंग अ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन? यस, नो? ओके. Is it, are you able to write a program, simple program such as upper, lower? ये आप लिख पा रहे हो क्या यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन? नहीं तो रेगुलर प्रोग्राम आप कन्वर्ट कर सकते हो इन द कॉम्प्रिहेंशन. ओके, सो स्ट्रक्चर इज सेम, होप यू नो. स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल इन द स्ट्रक्चर देयर आर 4 टाइप, राइट? एक लॉजिक फॉर था, फिर लॉजिक फॉर इफ था, एंड देन लॉजिक फॉर है, और लॉजिक if, else and for, right? Yes. So these are the 4 types. Dictionary comprehension में we have seen 2 types. 2 type ये और ये हमने देखा है. But other things you can apply as per the requirement. जहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ requirement है, you need to apply any logic. जहाँ पे multiple for loops आपको iterate करने हैं. So that time you can create, और आप add भी कर सकते हो. Okay. Okay, so any doubts, questions, clarification? Hmm? So just to revise, we started with what are the different data types. कौन से अलग अलग data types है, right? So 2 data types, basic और basic as well as derived, और आप बेसिक की बजाय व्हाट वाज द वर्ड, सॉरी. हाँ, प्रिमिटिव एंड डिराइव्ड. प्रिमिटिव इज नथिंग बट अ इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, जो खुद का मीनिंग है उन्हें. यू कैनॉट क्रिएट इंटीजर फ्रॉम यूजिंग समथिंग एल्स, राइट? So they have their own meaning, they have their own mathematical intuition. Okay. Then next one is about डिराइव्ड. डिराइव्ड में क्या होता है, वी यूज प्रिमिटिव और वी यूज बेसिक जो डेटा टाइप्स है वो यूज करके हम डिराइव्ड डेटा टाइप बनाते हैं. फॉर एग्जांपल लिस्ट हो गया, टपल हो गया, राइट? डिक्शनरी है, सेट, फ्रोजन सेट. ओके, सो दीज आर द डेटा टाइप्स व्हिच वी हैव सीन और वी हैव क्रिएटेड. ओके, जब भी हम डिराइव्ड डेटा टाइप पढ़ रहे थे, सो वी यूज्ड अ पैटर्न. पहले कैसे क्रिएट करना है, how we can create that data type, right? So उसमें multiple approaches थे, such as एक तो directly लिखिए. डायरेक्ट एज इन फॉर एग्जांपल लिस्ट क्रिएट करना है तो यू स्टार्ट विद स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखिए, सो दैट बिकम्स अ लिस्ट. इफ यू वांट टू क्रिएट अ टपल, आप पैरेंथेसिस create, as in you can type parenthesis and insert a number. सेट बनाना है तो स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट्स एंड एलिमेंट्स इनसाइड देम. डिक्शनरी क्रिएट करना है तो यू पुट अगेन कर्ली ब्रैकेट एंड की एंड वैल्यू पेयर आपको लिखना पड़ेगा. This is a one approach. Another approach is where you can create using inbuilt function such as str नाम का एक inbuilt function है, int नाम का inbuilt function है, list inbuilt function है, tuple inbuilt function है, right? Dictionary inbuilt function है, set inbuilt function है, frozen set inbuilt function है. So by using inbuilt function you can create the data type. जो भी data type आपको create करना है वो आप create कर सकते हैं. Okay. देन डेफिनेटली बाय यूजिंग रेंज. रेंज नाम का एक फंक्शन है जो नंबर्स क्रिएट करता है. नम दैट रेंज फंक्शन यूज करके भी आप अलग अलग डेटा टाइप्स, अलग अलग लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट आप क्रिएट कर सकते हैं.
Clear? Then we saw some properties such as list के केस में it is indexation possible है, slicing possible है, right? uh, Ordered collection है, duplicates are also allowed, okay, and list is a mutable. Similarly, in case of tuple, again duplicates are allowed, okay. Heterogeneous collection, अलग अलग data types आप store कर सकते हो, but only difference between list and tuple is immutable, मतलब tuple आप change नहीं कर सकते, list you can change. तो कौन कौन से तरीके हैं change करने के? For example, list dot append, list dot pop, right? List dot count, index, uh, uh, और कुछ आपको पता है तो you can use. So these are the method जो आप use करके add, extend, remove, append, pop. Okay, so these are the method you can use to modify the list, but same methods are not available in tuple. Clear? So as we started with how to create, then methods, then logical such as plus and minus. Mostly plus क्या करता है, concatenate करता है, मतलब combine करता है. Multiplication will duplicate, मतलब आप किसी भी list और tuple को multiply करोगे किसी number के साथ, it will duplicate itself. Okay. Then last option is about the comprehension. Mostly it is available in the list and the dictionary. Okay. So this was the flow जो हमने सीखा है. Only thing change from this is in case of a set, you duplicates are not allowed. It is unordered collection, right? You have some special options called intersection and union, जहाँ पे आप combine कर सकते हो, remove कर सकते हो, right? So those options are available in case of set. तो उसी में again frozen set is there which has similar properties but immutable. Frozen set मतलब immutable. Immutable is you cannot change that data type. Okay, clear? So these are about basic, and in between we saw a few things such as what is a loop, while loop क्या होता है, for loop क्या होता है, okay, functions के भी अलग अलग types हमने देखे थे. For example, inbuilt function, user defined function, lambda function, functions, right? Clear? So this is overall we have seen from day one, मतलब day one से आज तक 21 right, शायद 21 ही है ना आज का. 21 we have covered most of the things. Clear? समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ, और कुछ पार्ट आपको नहीं आ रहा है? ओके okay? क्योंकि आज हम और एक टाइप देखेंगे फंक्शन का, दैट अगेन हायर ऑर्डर फंक्शन है, दैट इज अगेन अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए आपको ये फंक्शन पढ़ना है. okay. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन. होप लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके, इज इट विजिबल? Okay. Okay, so higher order function. Hope my screen is visible now. Okay. So there are three higher order functions. One is map, filter, and reduce. So map, how to use? This is how you can write map, or दो bracket. Only difference is, ये देखिए इसे सिंटैक्स में ऐसा लिखना पड़ता है, मैप दो पैरेंथेसिस, इसके अंदर एक फंक्शन एंड अ इटरेटर. इटरेटर इज नथिंग बट कलेक्शन, लिस्ट, टपल, सेट वगैरह. ओके, इटरेटर वो एरो क्रिएट होता है. होप यू नो राइट. इटरेटर जब भी हम फॉर लूप लगाते हैं लिस्ट के ऊपर तो एरो, दैट एरो इज नथिंग बट अ इटरेटर. उसे टेक्निकली इटरेटर बोलते हैं. ये तो रेगुलर ही फंक्शन दिख रहे हैं, मैप, ये और फिल्टर लिखा तो रेगुलर फंक्शन की तरह है, सच एज जो आप लिखते हो लेंथ, राइट, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, और आईडी फाइंड आउट करने के लिए, और बाइनरी, और ऑक्टल, और सम, और मिन,
राइट ऐसे ही लिखते हो ना मिन मैक्स, सिमिलर ऐसे ही दिख रहा है, देन व्हाई इट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन. सो एंड दीज आर कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शन, ये इनबिल्ट है, हायर ऑर्डर है. व्हाई? बिकॉज ऑल दिस फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है दे टेक इनपुट और आर्ग्यूमेंट, जो उन्हें पास आप करते हो दैट इज अ बेसिक नंबर्स और बेसिक डेटा टाइप्स. बट हायर ऑर्डर फंक्शन कैन टेक अनदर फंक्शन एज अ इनपुट. मतलब ये देखिए मैप के अंदर मैं और एक फंक्शन लिख सकता हूँ एंड देन इसके ऊपर ये इटरेटर लगेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन. सेम केस विद फिल्टर, फिल्टर भी ऐसे ही लिखा जाता है. देखिए फिल्टर, इसके अंदर एक फंक्शन आप लिख सकते हो. ओके, so what is the difference between map and filter? So as name suggests, map means mapping. So suppose input में I have A, B and C, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? It will have X, Y, Z. Means 1-to-1 मैचिंग रहेगा. जो इनपुट में है उसी पे आप कुछ कैलकुलेशन करोगे वही आउटपुट आएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 या 10 10 नंबर्स एज ए इनपुट आपने भेजा है, आउटपुट में कितने नंबर चाहिए? 10. ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट है आपको तो यू शुड यूज अ मैप. बट इफ यू वांट टू रिड्यूस फिल्टर समथिंग, फॉर एग्जांपल इनपुट में आपने 10 नंबर दिए हैं, आउटपुट में कितना आ रहा है? 10 से कम में भी 8, 7, 7 कुछ भी हो सकता है. इनपुट मतलब नंबर ऑफ इनपुट इज मोर देन नंबर ऑफ आउटपुट, ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट है तो आपको फिल्टर नाम का ये फंक्शन यूज करना पड़ता है. ओके, इसका ही एडवांस और एक थर्ड वर्जन है कॉल्ड रिड्यूस, उसे भी लिखते ऐसे ही है. उसका प्रॉपर्टी ये है, इनपुट में 10 है बट आउटपुट में ओनली 1. मतलब इनपुट में आप कितने भी नंबर दे दो, कुछ भी दे दो, आउटपुट हमेशा 1 रहेगा. ओनली 1 एलिमेंट और 1 नंबर, ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट है तो ये रिड्यूस. दीज आर वेरी स्पेशल और स्पेशल पर्पस आप बोल सकते हो क्योंकि इनका लिमिटेड एप्लीकेशन है. इनपुट इक्वल टू आउटपुट रहेगा तो ही यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं तो इनपुट कम. ओके, लेट्स सी कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं, देन मे बी इट वुड बी बेटर फॉर यू. फॉर एग्जांपल आपको कुछ लिस्ट दिया है, इसका 8th ऑर्डर, 8 ज्यादा हो जाएगा, चलो स्क्वायर चाहिए आपको. एक लिस्ट है इसका. ओके, लिस्ट का स्क्वायर निकालना है. इसमें जितने भी नंबर्स दिए हैं, ओके, इसमें जितने भी नंबर्स दिए इन सब लोगों का स्क्वायर चाहिए. तो स्क्वायर कैसे करते हैं? वी ऑल नो. सो दिस इज हाउ वी डू द स्क्वायर, राइट? ये ऑपरेटर आता है, एक ऑपरेटर है नंबर्स का. ओके, सो आई वांट टू इम्प्लीमेंट ऑन ऑल दिस नंबर्स. ये सारे जो नंबर दिख रहे हैं इसमें मुझे इम्प्लीमेंट करना है, मतलब 3 का स्क्वायर, 5, 6, 7, 8, 9 का सबका स्क्वायर, और वैसे ही लिस्ट क्रिएट होना चाहिए ऐसे. क्लियर? सो इधर आई कैन डू फॉर लूप, एक इटरेटर शुरू करो, मतलब ऐसे 3 नीचे आएगा फिर उसका स्क्वायर होगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, ऐसे. ओके, this is the simple approach which you can follow. For example, for number num in numbers print num and comma num का square. सॉरी, ये देखिए. सो नंबर 3 है उसका स्क्वायर 9 है, नंबर 5 है उसका स्क्वायर 25, राइट? ये सब कुछ आई कैन सॉल्व यूजिंग मैप. मैप का भी यूज करके वी कैन सॉल्व. तो व्हाट हैपेंस हियर? व्हाई? बिकॉज इनपुट जितने भी नंबर है स्क्वायर करूंगा तो आउटपुट में कितने आएंगे? सेम नंबर आएंगे. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मैप. सो यू कैन यूज द मैप ऑप्शन हियर. मैप ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, क्लियर? सो हियर पहले तो बाय द वे ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी प्रीवियसली देखा है. कैन एनीवन आइडेंटिफाई व्हाट इट इज? क्या बोलते हैं इसे और कैसे लिखा है ये? व्हाट इज दिस? ये क्या है? पहले तो ये बताइए, 2 पैरेंथेसिस क्या है? ये लिस्ट है. और लिस्ट के अंदर कुछ भी लॉजिक लिखता हूं तो ऐसे कहां देखा इससे पहले? यस, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन.
लॉजिक एंड ये फॉर लूप हमने जब अभी लेक्चर स्टार्ट किया था, दिस इज व्हाट आई शोड, राइट? लॉजिक एंड फॉर एक स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर. So this is nothing but a comprehension. So you can solve this problem with respect to comprehension as well, but we are more interested into map. तो मैप में क्या होता है, पहले तो आपको मैप नाम का ये लिखना पड़ेगा फंक्शन एंड पैरेंथेसिस इनसाइड यू नीड टू पास अ फंक्शन. तो हमारे केस में फंक्शन इज अ लैम्डा, लैम्डा फंक्शन, राइट? लैम्डा को लिखते कैसे, लैम्डा इनपुट और आर्ग्यूमेंट और कोलन करके लॉजिक. किसके ऊपर, ये सारे नंबर्स के ऊपर. और इसका 1 to 1 फिल्टरिंग होगा ऐसे. फॉर एग्जाम्पल मतलब इनसाइड दिस यू नीड टू राइट अ फंक्शन और वो फंक्शन इस सारे नंबर्स के ऊपर लगेगा और उसका आंसर यहाँ पे आ गया. ये देखिए 9, 25, 36, ओके, 49 वगैरह ऐसे. क्लियर? सो बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ मैंने मैप नहीं लिखा, वी हैव मेंशन्ड अ लिस्ट एज वेल. एक लिस्ट का भी यहाँ पे लिखा है. व्हाई? क्योंकि जब भी आप हायर ऑर्डर फंक्शंस यूज करते हो, इट ऑलवेज प्रोवाइड्स यू अ ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट आपको देता है और उस ऑब्जेक्ट को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू कि व्हाट ऑब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैप एट दिस. इससे पहले हमने ये कहाँ पे देखा, एनीवन नोज? इन केस ऑफ टपल वी हैव सीन दिस. आईडी, या ये तो आईडी है, जहां पे ये वेरिएबल स्टोर है उसका आईडी है ये, बट ये कॉम्प्रेस फॉर्म है, इसको अनकॉम्प्रेस भी करना पड़ेगा. इससे पहले टपल में हमने जिप, याद है क्या? जिप जब यूज किया था, जिप एट ऐसा आपको आंसर आया था. सो दैट्स व्हाट आई मेंशन, दिस इज अ ऑब्जेक्ट. और इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इधर आप फॉर लूप लगाओ, नहीं तो डायरेक्टली लिस्ट आप कन्वर्ट कर सकते. नॉट ओनली लिस्ट, टपल भी कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, क्लियर? सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू गेट एनी हायर, और आप जब हायर ऑर्डर फंक्शन लिखते हो तो आउटपुट हमेशा आपका एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है. ऑब्जेक्ट मतलब कॉम्प्रेस्ड फॉर्म, उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग फंक्शन लिस्ट, टपल. ओके, नॉट एन इशू. क्लियर? सो मैप एंड इसके अंदर ये हायर ऑर्डर फंक्शन. एनी अदर एग्जांपल, मतलब जहां 1 to 1 मैचिंग. स्ट्रिंग का भी हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मार्क्स, नहीं, मार्क्स का फिल्टर हो सकता है ना, पास. मतलब आपको क्या करना है मार्क्स का, म्हणजे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स स्टुडंट कंपल्सरी द्यावंच लागेल ना ते. नाही, म्हणजे इनपुट आणि आउटपुट सेम पाहिजे ऐसे. फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास 10 नंबर्स है, मार्क्स है, सबको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा करना है. सो अगेन ये एप्लीकेशन हो सकता है इसका, जहाँ पे इनपुट और आउटपुट सेम है ऐसे. और स्ट्रिंग डॉट अपर लोअर का भी है, मतलब 5 स्ट्रिंग है आपके पास, सबको अपर में कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जांपल आप लेट्स, ओके, ये नेम्स का आप देख सकते हो. इफ यू वांट, names is equal to Amit, Akash, Anil, राइट? और मुझे आउटपुट में सब कुछ अपर लेटर में चाहिए. पहले तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी सॉल्व होता है, वी हैव सॉल्व्ड इट, बट आपको एग्जीक्यूट करना है. हाँ, डिस्काउंट ऑन एवरी सेल, यस एब्सोल्युटली. ओह गुड. सो सारे नंबर्स पे आपको डिस्काउंट देना है तो दैट टाइम आल्सो पॉसिबल. नेम्स को कैपिटलाइज करना है तो सो व्हाट यू कैन डू, मैप. क्या मैप होगा? एक फंक्शन आपको लिखना है, किसके ऊपर लिखना है? नेम्स के ऊपर. तो नेम्स का 1 by 1 आपको लैम्डा नेम एंड नेम डॉट अपर, राइट? तो ये जो सारे नेम्स है इसमें से 1 by 1 नेम इस फंक्शन के अंदर आएंगे नेम डॉट अपर के ऊपर.
ओके, पहले अमित आएगा, आकाश आएगा, अनिल आएगा, और उसका आंसर जो भी है वो इस मैप में अंदर सेव होगा एज अ ऑब्जेक्ट, राइट। अरे क्या है, कैन एनीवन ऑब्जर्व क्विकली? यस, डिफाइन नहीं है, नहीं नहीं, हे डबल इक्वल टू झालंय, कंपैरिजन ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, ओके, ठीक, ओके, ये देखिए मैप ऑब्जेक्ट, तो सारे आंसर आपके इस फंक्शन के आंसर इसके अंदर स्टोर हुआ है, तो इसे मैं टपल करना है, टपल लिस्ट वगैरह आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन लाइक दिस, ये देखिए, ओके, यस यस, यस एब्सोल्युटली संकेत, असाइन हुआ था वहां पे, ओके, क्लियर। सो ये है मार्क्स, नंबर वगैरह, आपको कुछ मतलब जितने इनपुट है, देखिए फॉर एग्जांपल देयर आर 3 एलिमेंट इनपुट में, आउटपुट में क्या है 3, सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड अ मैप, आपको सिर्फ ये लैम्डा के फॉर्म में फंक्शन लिखना पड़ता है लाइक दिस, ओके। और एक एग्जांपल भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, हाँ यही किया है, स्ट्रिंग डॉट अपर इन्होंने डायरेक्टली लिखा है, वी हैव यूज्ड लैम्डा फंक्शन, बट ठीक है। सो देयर इज वन एक्चुअली, इंटरव्यू का भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इज अल्फा वगैरह यूज करना है, लेट लेट मी गिव यू, लेट्स अंडरस्टैंड एंड देन आंसर, ओके, देखिए यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया है, ओके, इस सारे लिस्ट में एज है, ओके, एंड आई वांट टू ऐड, लेट्स से 7, सारे एज में 7 नंबर ऐड करना है, और उसका 7, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज वी हैव अ लिस्ट ऑफ एजेस, व्हाट इज द न्यू एज आफ्टर 7 years, ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन सब लोगों का 7 साल के बाद क्या एज होगा, तो दिस इज द लिस्ट, सो हु कैन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मैप और लैम्डा आप बोल सकते हो, ओनली ट्रिक इसमें एक, क्या ट्रिक है, यू कैन डायरेक्टली ऐड 7 हियर, ओके, इसमें तो 7 ऐड होगा, क्यों, नंबर है वो, इंटीजर है, ग्रीन कलर, बट कैन यू डू दिस, नो राइट, स्ट्रिंग, तो इसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट, तो क्या प्रोसेस करोगे, इज प्रॉब्लम क्लियर, सो दीज आर द स्टूडेंट्स के एज, व्हाट विल बी देयर न्यू एज आफ्टर 7 years, कैसे सॉल्व करोगे आप, चलो रेगुलर प्रोग्राम से सॉल्व करते क्विकली, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बाद में आ सकते हैं, बट चलो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है, फॉर लूप लगाओ ना, 7 ऐड करो, वर्क होगा, यस, ये वर्क, ओके संकेत, एक्चुअली गुड, लेट्स सी, आपने जो आंसर दिया है, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट, नंबर, नंबर प्लस 7 एंड नंबर्स, एब्सोल्युटली, मतलब फॉर लूप यूज कर रहे हैं, फॉर नंबर्स, हर एक नंबर इसमें अंदर आएगा, एक एक नंबर, उसमें 7 ऐड होगा, चलो, यस, हो रहा है, सॉरी कहाँ है, नंबर्स नहीं है, एज चाहिए यहाँ पे, एज, एज के ऊपर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, स्ट्रिंग के ऊपर आप नंबर ऐड कर रहे हो ना, तो चेक, ये होता है कि स्ट्रिंग में नंबर का भी ऐड, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, यस, बोलिए क्या करना पड़ेगा, इंटीजर कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो आप INT ऐसा, दिस इज ऑल्सो सिंपल, यस, हाँ, माय नेक्स्ट पॉइंट इज,
चलो अभी, सो दिस इज द लॉजिक इट वर्क्स। तो इसके लिए कैसे करेंगे? यस, कैसे डिलीट, बट डिलीट कर दो, एग्री, ये लिस्ट है, डिलीट हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वो ढूंढोगे कैसे कि कौन कन्वर्ट नहीं होगा, कौन होगा? अंडरस्टूड ना? हाँ, हाउ विल यू, मतलब आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये कपिल जो लिखा है वो चेंज नहीं होगा, बट वो 44 लिखा है वो चेंज हो सकता है? डेटा टाइप तो सेम है, स्ट्रिंग है सबका। ऑनलाइन, एनी एनी इनपुट, इज इट अ सिंपल, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ एल्गोरिथम लगाना है? तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? यस, ऑनलाइन क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? वेरी वेरी तो एक्चुअली क्या करना पड़ता है, यू नीड टू हैव स्पेसिफिक मेथड, एक पता होना चाहिए आपको। जब भी आपको स्ट्रिंग के मेथड्स देखा होगा, वी सीन राइट, ऑलमोस्ट 30-40 मेथड्स है, ओके, उसमें ईज नाम के कुछ मेथड्स है, ईज। तो क्या करता है, देयर इज मेथड कॉल्ड ईज अल्फा, एल अल्फा, और ईज न्यूमेरिक, और ईज सिंबल, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर नंबर है कि नहीं, ये चेक करना है। कैसे करते हैं उसे, ऐसा एक फंक्शन आता है, सपोज ये 67 है, इसके अंदर नंबर है, डॉट इज न्यूमेरिक, देखिए टैब आ गया, ट्रू। द मोमेंट इसका आंसर ट्रू आएगा, मतलब ये नंबर में कन्वर्ट होगा, ये न्यूमेरिक है। और इसके लिए चेक करो फिर, तो आपको यही लॉजिक लगाना है, हर एक चेक करना है, न्यूमेरिक ट्रू आ रहा है तो आप नंबर में कन्वर्ट करो, नहीं आ रहा है तो मत करो। चलो अभी आई एक्सप्लेन यू लॉजिक, इसका प्रोग्राम बताओ जल्दी, चलो क्विकली। आई कैन यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एज वेल। चलो ऑनलाइन करना है, कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करना है, तो कॉम्प्रिहेंशन में लिखता हूं मैं, पहले तो लॉजिक और फिर फॉर, फिर इफ, तीन ही कंडीशन है ना। फॉर में क्या आएगा, लिखा ही है आप लोगों ने यहाँ पे कुछ, ये ना, फॉर में आएगा फॉर ए इन एज, इफ में क्या आएगा, ए डॉट इज न्यूमरिक, यही चेक कर रहे हो ना, इज न्यूमरिक, इनका इसका आंसर ट्रू आ गया, इफ ट्रू आ गया तो लॉजिक में क्या आएगा, कन्वर्ट, कन्वर्ट होगा, कौन, ए कन्वर्ट होगा, ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलो, सो कहाँ पे थे, किसी ने आंसर किया है इसका लॉजिक? हाँ, फॉर इंटीजर, न्यूमेरिक है तो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, होने के बाद चलो इसका तो आंसर देखो, लेट्स एंड देन मे बी यू कैन डिसाइड। नो एट्रीब्यूट कोड इज न्यूमेरिक, इंटीजर ऑब्जेक्ट हैज नो, ओ इसमें से इंटीजर आ रहा है ना इनिशियली, तो मतलब वो हर बार इंटीजर चेक कर रहा है। थिंक थिंक, हम्म, इंटीजर पे ही शो आ रहा तो उसको स्ट्रिंग करो, फिर इज न्यूमेरिक चेक करो, फिर वो ट्रू आएगा। यस, नहीं समझा, समझा, ओके। आपका लॉजिक ये जो था, कब ट्रू आ गया था, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए ट्रू आ रहा था, राइट, बट इसके लिए देखो क्या आता है, फॉल्स आएगा वो डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये डॉट करके क्या है, ये क्या बोलते हैं इसे, मेथड, मेथड, और ये मेथड स्पेसिफिकली वर्क किसके लिए होता है,
स्ट्रिंग के लिए ना, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग रिलेटेड मेथड, दिस इज नॉट इन बिल्ट फंक्शन। बट हम जो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं इज न्यूमरिक, इसमें तो वर्क होगा, स्ट्रिंग है इसमें वर्क होगा, इसमें 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 वर्क होगा, अप्रोप्रिएटली आंसर देगा। बट व्हाट अबाउट दिस फोर, इंटीजर के ऊपर थोड़ी वो मेथड वर्क होगा, तो इंटीजर के ऊपर वो मेथड वर्क नहीं होता, इसीलिए हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो फिर, और फिर चेक करो मेथड, राइट? यस, नो? मतलब क्या है ना, दिस विल वर्क ओनली फॉर दिस, तो इसीलिए इनको पहले मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ। कैसे? ऐसे, ऐसा चेक करो, ऐसा, ऐसा, हो गया। अभी ये कन्वर्ट हो गए, फिर उसके बाद ये फंक्शन सारे ऊपर लगेगा। इफ यू वांट टू चेक, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखा तो भी वर्क होगा ये, बिकॉज मैंने ऊपर ही कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए ऐसे, तो ये जो मैन्युअली मैंने हाथ से किया, उसे ही मैंने यहाँ पे फंक्शन से किया, str। हाँ, रहने दो, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, क्या होता है, कुछ नहीं होगा, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में। हाँ, दैट्स व्हाट, एरर नहीं आ रहा है ना। आपको चाहिए तो चेक करके देखो, str स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में 44 हो रहा है, राइट? सो इतना आपको आना चाहिए, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड अ लॉजिक, उसे लिखना आना है, दैट्स इट। कुछ कॉम्प्लेक्स किया हमने, क्या क्या यूज किया, बाय द वे व्हाट व्हाट ऑल वी यूज्ड। पहले तो ये मेथड यूज किया, फिर यहाँ पे एक डेटा टाइप था कॉल्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप मेथड और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आपको चाहिए तो ये कर सकते हो, नहीं तो सिंपल फॉर लूप से लिखो और आसान होगा वो, इट्स अप टू यू। ओके, तो इसमें से क्या नहीं हुआ था आपका, एज इन व्हाट डिड नॉट वी स्टडीड, सब सब पता था आपको। सो प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट इम्प्लीमेंटिंग योर नॉलेज, जो आपको पता है उसे ही यूज करना है, दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। चलो, क्लियर? समझ में आ रहा है क्या सबको ऑनलाइन? इफ नॉट, आई विल शेयर दिस फाइल, आप चेक कर लीजिए एक बार। ओके, एक बार। ओके, ये नहीं वर्क हो रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है, हो गया। सो दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग आ गया तो एक्सलेंट। चलो, एडिशन आपको करना है तो कर दीजिए ऐड, फिर वापस इंटीजर, राइट? +7 हुआ ना, ये देखो, इसमें +7, इसमें +7, सिर्फ यहाँ पे किया। ओके, सेम है, ठीक है। दिस इज हाउ पीपल विल आस्क, इससे आपका बेसिक समझ में आता है कि क्या स्ट्रिंग है, क्या इंटीजर है, आपको समझ में आ रहा है क्या, हाउ यू आर एडिंग, रिमूव कैसे कर रहे हो, सबट्रैक्ट कैसे कर रहे हो। अननोइंगली आपको इमीडिएटली नंबर देख के लगेगा कि चलो मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, आगे जाके दे विल पुट अ स्ट्रिंग, वो भी सॉल्व कर लिया तो वो और स्ट्रिंग अलग नाम का इंसर्ट करेंगे, दैट्स जस्ट टू नो योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलो, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मैप। मैप में क्या था, नंबर ऑफ इन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउट। फिल्टर्स, जैसे नाम सजेस्ट करता है, फिल्टर, घर में भी फिल्टर रहता है, राइट, पानी का, which reduce all the contamination वगैरह। Similarly it will work, in is more than the out, मतलब जितना इनपुट होगा उससे कम आउटपुट रहेगा आपका। ओके, सो इसके तो बहुत एग्जांपल है, ऑड, इवन, हमने देखा ही है बहुत बार, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑल दोस थिंग्स, दीज आर नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर। तो इसे भी इसी तरीके से लिखते हैं, लैम्डा नंबर कोलन देके लॉजिक लिखना है आपको। ओके, ये लॉजिक ट्रू हो गया तो आंसर में फिल्टर आएगा, ये देखिए ऐसे। ओके, एंड फिल्टर के केस में भी यही होता है। फॉर एग्जांपल, चलो कुछ सिंपल, आपने जो एग्जांपल बोला था, पास है कि नहीं, सपोज मार्क्स है मेरे पास, और इसमें से जो पास है स्टूडेंट वो मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल 20। ओके, इतने स्टूडेंट है, इसमें से जो लोग पास है, पास मतलब
ग्रेटर देन 35, तो उनका मुझे लिस्ट चाहिए अलग से। तो इन इज लेस देन आउट, आउटपुट में कम आएंगे नंबर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो आई विल डेफिनेटली यूज अ फिल्टर। तो फिल्टर, ओके, फंक्शन लिखा फिल्टर, ओके, देन इनसाइड आई नीड टू यूज अ फंक्शन कॉमा मार्क्स, राइट। फंक्शन के अंदर क्या लिखना है, लैम्डा मार्क, और मार्क किसके ऊपर फिल्टर होगा, ग्रेटर देन 35। मार्क ग्रेटर देन 35 हुआ तो फिल्टर आएगा, ये देखिए। बट ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग एन ऑब्जेक्ट। और इसे आप कन्वर्ट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ऐसे। क्लियर, ये देखिए इसमें से 22 नहीं आया। जो फेल है उनका चाहिए तो लेस देन 35, ऐसे, ओके। क्लियर, तो इसके ही ऑड एंड इवन में भी लिखा है ऐसे। अभी इसी नंबर को मुझे ऑड नंबर इसमें से प्रिंट करना है, तो ऑड का लॉजिक यही पे लिखो, लैम्डा मार्क, मार्क्स के आगे लॉजिक, मार्क, ऑड क्या, ऑड का लॉजिक क्या रहता है, नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही रहता है ना। वो मार्क जो नॉट इक्वल टू 0 है, दोज आर द ऑड। सिर्फ यहाँ पे लॉजिक लिखना है, दैट्स इट। और आगे लैम्डा इज अ कीवर्ड, मार्क इज अ वेरिएबल, ओके। ऑड है, इवन है, नंबर्स का आउटपुट, हाँ यही पे मार्क्स ग्रेटर देन आउटपुट भी है, ओके। ये इंटरेस्टिंग है। नेम एंड देयर मार्क्स, नाउ वी वांट टू प्रिंट बोथ। पहले तो आपको क्या दिख रहा है, दैट व्हाट इज द डेटा टाइप, डिक्शनरी, की एंड वैल्यू पेयर, ओके। और इसमें आपको फिल्टर लगाना है सो दैट यू विल गेट ओनली द नेम ऑफ द स्टूडेंट जो पास है, ओके। तो लॉजिक सेम रहेगा, सिर्फ डेटा टाइप चेंज होगा इधर। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आइटम्स क्या देता है आपको, टपल, और उस टपल के नेम एंड मार्क को हमने डिवाइड किया, उसमें से सिर्फ मार्क ग्रेटर है तो नेम प्रिंट करो। क्लियर, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व भी किया है ऊपर, एज इन प्रीवियसली आई शोड यू दिस एग्जांपल सेम। बट इसे फिल्टर करके आप बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हो। फिल्टर एज इन ये देखिए, लैम्डा की एंड वैल्यू पेयर प्रिंट हो गया, बट इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 35, ऐसे, ओके। स्टूडेंट्स नहीं है, कहाँ है हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे है। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस विच यू कैन यूज, और मल्टीपल वेज में भी आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो बाय द वे, ऊपर के दो तीन जो एग्जांपल है हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। वो एक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से सॉल्व किया है, इफ, फॉर एंड इफ का लॉजिक है, ओके। मेन हाईलाइट हमारा ये था, ओके, फिल्टर यूज करके। सो इफ यू सी, आइटम्स हमने किया है, तो इसमें से जो बाहर आएगा, राइट, बाहर क्या आएगा, की एंड वैल्यू पेयर, तो उसमें से फर्स्ट एलिमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं, व्हाई, वाई की का फर्स्ट एलिमेंट है, ओके। इसका आंसर आप देखिए क्या आता है, देन यू डिसाइड कि, ये देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, दिस इज अ लिस्ट, और इसके अंदर क्या है, टपल है, अलग अलग। सपोज ये लिस्ट है और मुझे ये जो टपल है इसे प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करते हैं, और फर्स्ट एलिमेंट मुझे प्रिंट करना है। कोई भी लिस्ट में से फर्स्ट एलिमेंट कैसे प्रिंट होता है, इंडेक्सिंग, राइट। तो बताइए इंडेक्सिंग कैसे करूं इसके ऊपर। पहले तो ये लिस्ट है, इसके ऊपर इंडेक्सिंग क्या लिखना है, पहले तो इसका नाम, लिस्ट का नाम, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हम इंडेक्स लिखते हैं 0। सॉरी, इसको आपको एक्चुअली सेव करना पड़ेगा कहीं पे।
मार्क्स कर दूं और डेटा इज इक्वल टू एंड डेटा को आप सब्सक्राइब करो डेटा एंड 0 सॉरी अनफॉर्चुनेटली आपको करना ही पड़ेगा एंड दिस को 0 ये देखिए ये हो गया राइट लाइक व्हाट आई डिड इज ये जो डेटा डॉट आइटम्स था डिक्शनरी दे रहा था बट एक्चुअली ये जिप वाला है मेमोरी देता है मेमोरी उस मेमोरी को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है तो दैट्स व्हाई आई गॉट टू नो इट इज सब्सक्रिप्टेबल मतलब वो जिप है कॉम्प्रेस्ड है तो आप कोई भी कॉम्प्रेस्ड वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करोगे तो इट विल नॉट टेक तो इसीलिए हमें उसे लिस्ट में कन्वर्ट किया ओके ये बाय प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा इमीडिएटली डोंट जंप इनटू ऑब्जेक्ट एंड उसको क्यों कॉम्प्रेस करते हैं बट दिस इज हाउ इट इज डन सो उसे लिस्ट किया और लिस्ट नाउ ये क्या है व्हाट इज दिस टपल और टपल में से मुझे ये 55 प्रिंट करना है तो व्हाट वी डू अगेन 0 एंड फर्स्ट अगेन इसका इंडेक्स आप निकालो इसका इंडेक्स आएगा इफ चेक कन्वर्ट हुआ तो 50 आ गया तो इस 55 के ऊपर मुझे कैलकुलेशन करना है वेदर इट इज ग्रेटर देन 35 और नॉट ऐसे ओके तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो और यू कैन यूज अ फिल्टर और ये यहाँ पे किया है देखिए 0 ग्रेटर देन 1 और ये जो डेटा एंड 0 का स्टेप है ये दिस इज डन इन द की ये जब मूवमेंट आप की डिक्लेयर करोगे ये सारा कन्वर्जन हुआ है यहाँ का लिस्ट कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे वो सब्सक्रिप्ट भी हुआ है ऐसे दैट्स व्हाई पीपल जनरली यूज लैम्डा और हायर ऑर्डर फंक्शन जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन है सच एज ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट होता है उसे बार बार लिस्ट में कन्वर्ट करो वापस इंडेक्सेशन करो ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो फिल्टर है ये भी ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करता है ये आइटम्स है ऊपर वाला ये भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है सो दे डू मतलब उन दोनों का डायरेक्टली कैलकुलेशन होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट बट आप मैन्युअली उसे हाथ से अलग अलग स्टेप लिखोगे तो मैन्युअली कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे ओके आई नो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि बहुत अलग अलग चीजें हैं इमीडिएटली वी आर डूइंग समथिंग न्यू बट दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु नो बेसिक कैसे काम करता है हाउ टू राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन ओके और हाउ टू राइट अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये उसके आगे जाता है दैट्स व्हाई द नेम आल्सो इज हायर ऑर्डर फंक्शन राइट यू नो व्हेन टू यूज हाउ टू यूज तभी आप यूज कर पाते हो बट इट्स गुड टू नो कि ऐसा कुछ है आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू इमीडिएटली राइट ऐसा नहीं कि आप इमीडिएटली लिखो कोई पूछेगा आपको नहीं नहीं ये हायर ऑर्डर फंक्शन से ही लिखना है ये जनरली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपने 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा है उसे एक लाइन में लिखना है उससे क्या होता है प्रोसेसिंग फास्ट होता है कैलकुलेशन फास्ट होता है मान लो 10 करोड़ लाइन आइटम के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है तो रेगुलर प्रोग्राम स्लो हो जाएगा एक लाइन और जो ऑप्टिमाइजेशन ये फास्ट कर देते हैं बट इतना टाइम बचा के करना क्या है वाई मतलब सपोज 10 करोड़ रन करने के लिए लेट्स से यू नीड 1 मिनट और आपने एक लाइन में लिखा ऑप्टिमाइजेशन वो 10 सेकेंड में हो रहा है तो ये 50 सेकेंड बचा के मिल क्या रहा है किसको मतलब प्रॉब्लम हो रहा है यस ओके 50 सेकेंड्स और कैसे आप लाइक हाउ आर यू जस्टिफाइंग मतलब आपको किसी ने पूछा क्यों पढ़ना है नहीं पढ़ना है नॉट रिक्वायर्ड कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना है हायर ऑर्डर नहीं करना है चलो क्या होगा व्हाट इज द कॉस्ट यस ऑनलाइन एनीवन नोस कि क्यों ऑप्टिमाइजेशन करते लोग बाय द वे आप सीक्वल डेवलपर वगैरह बनोगे तो देर आर टास्क सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा आपको क्वेरी लिखना नहीं है क्वेरी लिखा है किसी ने सब वर्क हो रहा है उसे फास्ट बनाना है क्यों वाई देर आर प्रोफाइल्स और ऐसे टास्क रहते हैं चलो क्यों हम्म सो जनरली जब आप
इमेजिन कर रहे हो ये 50 सेकेंड 60 सेकेंड, तो प्रॉब्लम, और मे बी कॉस्ट के बारे में सोचते हैं, आपने क्लाउड यूज किया है कोई AWS, अज्यूर वगैरह, दीज आर द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब जो आप गूगल ड्राइव यूज करते हो डेटा स्टोरेज के लिए, राइट? 15 GB का है, 100 GB हो गया तो पर मंथ 150 रुपीज, ये हो गया मंथली बेसिस पे। बट कंपनीज वगैरह जो है, बड़े बड़े कंपनीज को पर मंथ के बेसिस पे नहीं कैलकुलेशन होता, और कितना स्टोर किया है इसके बेसिस पे नहीं होता, कितना कैलकुलेशन हुआ है उसके बेसिस पे चार्ज रहते हैं। तो आपका पाइथन प्रोग्राम 50 सेकंड 1 मिनट ले रहा है, तो 1 मिनट के हिसाब से पैसा गिरता है वहां पे। और मान लो उसे ऑप्टिमाइज किया और 10 सेकंड में हुआ, तो 50 सेकंड का पैसा आपने बचा लिया, डूइंग नथिंग, सिंपली एक लाइन में कोड लिख के, दैट्स इट। तो ये जो 50 सेकंड का पैसा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एक्चुअली बिलिंग डॉलर में होता है, रुपीज को ही नहीं कंसिडर करता। तो $0.012 $3 ऐसे। तो आप इमेजिन करो 50 सेकेंड, ऐसे आपके पास 10 प्रोग्राम है, तो 50 सेकेंड्स इंटू 10, 500 सेकेंड्स, 500 डिवाइडेड बाई 60, कितने मिनट्स हो गए? 8 मिनट्स, राइट? और वैसे आपके जैसे कंपनी में 10,000 लोग हैं, और चलो 200 लोग हैं इन्फोसिस TCS, 200 300 तो SQL डेवलपर रहेंगे, तो 300 इंटू 8 मिनट करो, 2400 मिनट्स करो आवर्स में, बच रहा है ना पैसा। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव यू द इम्पैक्ट। तो इसीलिए जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो करियर में, प्रोग्राम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोग्राम ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू आर स्टार्टिंग इट्स ओके, बट पता होना चाहिए, है ना, हाउ टू राइट। किसी को इम्प्रेस करना है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, फिल्टर लिख दो, वो आगे कुछ नहीं पूछेगा, फिर खत्म, है ना, दैट मतलब वहां पे खत्म हो जाता है लेवल। इवन आई ऑल्सो डोंट राइट, इतना मैं नहीं लिखता कभी, क्योंकि नॉट श्योर, इंटरव्यू में थोड़ा प्रेशर भी रहता है ना, तो इसलिए बाय प्रैक्टिस अप टू यू कि आपको क्या लेवल पे खेलना है। इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन में आपको उसके समझाना है कि मुझे पाइथन कितना आता है, तो वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट फिल्टर और हायर ऑर्डर कौन लिखो, वहां पे खत्म, वो आगे बढ़ जाएगा। फिर ऐसा इधर ही विल नो और ही डोंट नो, क्योंकि बहुत कम इसके यूसेज है ऐसा। उसको पता रहेगा तो वो पूछेगा, नहीं है तो बोलेगा अरे बहुत ज्यादा आता है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इधर अच्छा, क्लियर। ऑनलाइन आपको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना है, मैप एंड फिल्टर भी कंबाइन कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पे। तो तो वो कह रहा है मैप इज अल्टीमेट फंक्शन, ओके। यहाँ पे इफ आई राइट कॉपी, ओके, मतलब मैप में क्या लिखते हैं आप लोग, फंक्शन कॉमा, हम लिस्ट वगैरह कुछ भी लिखते हैं, राइट? ऐसा कुछ भी आते हैं लिस्ट, कुछ इटरेबल, मान लो ये लिस्ट, ये देखिए यहाँ पे भी लिस्ट है और यहाँ पे भी लिस्ट है, कैन आई रिप्लेस दिस लिस्ट विथ समथिंग एल्स? और ये समथिंग एल्स जो है और ये लिस्ट जो है, इसे मैं रिप्लेस करता हूँ यूजिंग मैप, सॉरी फिल्टर। और फिल्टर में भी हम कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन कॉमा लिस्ट, हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज, लिस्ट, मैप उसका फंक्शन, लिस्ट फिल्टर उसका फंक्शन, ऐसा। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट्स का जो भी मार्क्स वगैरह है और इनके जो नाम है आपको सिर्फ प्रिंट करना है। पहले तो इन्हें फिल्टर करना है जो पास है, फिर जो भी फिल्टर होगा उसमें भी नेम एंड मार्क रहेगा, बट सिर्फ हमें नाम चाहिए, उसमें से भी जो भी आउटपुट आएगा उसका नाम। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे हमने किया है, देखिए ये प्रोग्राम है कॉल्ड स्टूडेंट 11, और इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है, पास हुए स्टूडेंट्स का लिस्ट, सॉरी टपल है उसका एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टपल, लिस्ट ऑफ टपल सारा, बट मुझे सिर्फ नाम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको एज ए इनपुट लूंगा और मैप में डालूंगा।
सो दैट मुझे सिर्फ नाम मिले, और यही किया है देखिए। सो ये जो स्टूडेंट 11 में ये आंसर मैंने स्टोर किया है, ये आंसर स्टूडेंट 11 में स्टोर हुआ है। देखिए इसका आंसर, फिल्टर का आंसर स्टूडेंट 11 में है, राइट। और इस स्टूडेंट 11 के ऊपर मैं मैप लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैप स्टूडेंट 11, और आंसर में ये आ रहा है। ओके, तो इसी को कंबाइन किया है नीचे। ये स्टूडेंट 11 जो लिखा है ना, इसको ये रिप्लेस करो यहाँ का प्रॉब्लम ऐसे। ये देखिए ये है ना स्टूडेंट 11, कॉपी स्टूडेंट 11 को पेस्ट करो, तो ये बन जाएगा पूरा ऐसा। थोड़ा हायर लेवल है, घर जाइए 1 बाय 1 प्रिंट कीजिए। पहले फिल्टर प्रिंट कीजिए, पहले लिस्ट प्रिंट कीजिए, फिर सिंपल सिंपल स्टार्ट कीजिए। पहले तो सिर्फ मार्क्स उसको फिल्टर कीजिए, फिर नेम एंड मार्क्स उसको फिल्टर कीजिए, फिर नेम एंड मार्क्स उसको मैप कीजिए। ओके, क्लियर? इफ यू वांट टू इंक्रीज द नॉलेज, और एल्स सबसे सिंपल रेगुलर फॉर लूप लगाओ, लिखो उसका प्रोग्राम। चलो कॉपी, आई हैव फ्यू मोर मिनट्स। रेगुलर अप्रोच से सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम। कौन बताएगा? रेगुलर अप्रोच, ये हो गया इनपुट, लॉजिक लिखो नीचे एंड आउटपुट। ओके, और हमारा फेवरेट मतलब एक आंसर इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, और इसमें मैं आंसर भरूंगा और प्रिंट करूंगा, राइट? प्रिंट आंसर, राइट? यही है हमारा स्ट्रक्चर। मुझे सिर्फ यहाँ पे लॉजिक लिखना है, उस लॉजिक में कौन कौन पास हुआ है इसमें से उनके नाम आने चाहिए। चलो पहले तो फॉर से स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट में कौन कौन आ रहा है देखिए, प्रिंट स्टूडेंट, एक्चुअली डायरेक्टली स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स चाहिए मुझे, राइट? ऊपर क्या है, डिक्शनरी है, यस नो, आइटम्स, प्रिंट स्टूडेंट। ओके, ये प्रिंट हो रहा है। ये आपको चाहिए तो इससे टेम्पररी में कमेंट कर देता हूँ। कमेंट मतलब हैश लगाना, वो रन नहीं होगा फिर। ये देखिए अभी आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है इसके ऊपर। पहले तो ये क्या है, व्हाट इज, इसका डेटा टाइप क्या है, टपल। टपल में से 55 कैसे बाहर निकालते हैं, ये ऐसे इंडेक्सेशन, क्या इंडेक्स आएगा इसका, 1, तो बाहर निकालो फिर मार्क्स, स्टूडेंट इंडेक्स 1, मार्क्स बाहर निकले। अभी लॉजिक लगाना था, पास है कि नहीं, तो लगाओ लॉजिक इसके ऊपर। कैसे लगाते हैं, इज स्टूडेंट का मार्क ग्रेटर देन 35, राइट? ये हो गया लॉजिक। प्रिंट हटा देता हूँ फॉर टाइम बीइंग, अभी प्रिंट नहीं करना है मुझे। और सिर्फ लॉजिक लिख के कैसे लिखते हैं, इफ लिखते हैं ना, कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ स्टूडेंट 1 का मार्क ग्रेटर देन 35 होगा तो क्या चाहिए आपको, नाम चाहिए। तो प्रिंट नाम कैसे निकलते हैं, इंडेक्सेशन था अगेन, तो स्टूडेंट 0 आ गया, राइट? बट ये क्या आ रहा है, ऐसे एक लाइन में आ रहा है, आपको एक लिस्ट में चाहिए तो हमने ये आंसर यहाँ पे क्रिएट किया है ना, डॉट अपेंड मार दो, फिर खत्म। आंसर डॉट अपेंड स्टूडेंट का नाम, हो गया। और यहाँ पे प्रिंट आंसर करो, आपका लॉजिक इनपुट आउटपुट हो जाएगा, आ गया। तो दिस इज द सिंपल वे, वेरी बेसिक। और इसका एडवांस वर्जन ये है, ये है। तो इट्स अप टू यू कि कौन सा यूज करना है ऐसे। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आया? इसका और एक थर्ड इटरेशन भी आता है कॉल्ड रिड्यूस। तो रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस को लिखते भी ऐसे ही है, रिड्यूस फंक्शन इटरेटर। उसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, आंसर हमेशा एक नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल में जो आप सम करते हो पूरे कॉलम का और मैक्स निकालते हो, मिन निकालते हो, उसमें आंसर क्या आता है, ओनली 1, तो वो यहाँ पे वर्क होता है।
कैसे, तो आपको लैम्डा में 2 देना पड़ता है। बाय द वे ये ऐसे इसका रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन है। फॉर नंबर इन नंबर, रिजल्ट रिजल्ट, ऐड करो, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो। ये फॉर लूप अभी आपको पता रहेगा। होप आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस फॉर लूप। एडिशन करना है तो एडिशन भी आप कर सकते हो यहाँ पे। एडिशन, ये हो गया एडिशन, 89 आ रहा है इन सबका। ओके, बट इम्पोर्टेंट हमें ये है, इसमें क्या लिखना है, लैम्डा, ये देखिए लैम्डा, बट 2 नंबर हमें एडिशन करना है तो नंबर 1 कॉमा नंबर 2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा दोनों का, ऐसे नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, एंड नंबर्स, नंबर्स में कौन है, ये सब लोग हैं। और रिड्यूस ये फंक्शन आपने लिखा है, और हम इसे एक्चुअली करना चाहिए था लिस्ट में वगैरह, नहीं तो इंटीजर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिड्यूस भी हायर ऑर्डर फंक्शन है, सो इट गिव्स यू जिप, वो कंप्रेस्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको मिलता है। बट पहले ये समझते हैं, इफ आई मूवमेंट आई एग्जीक्यूट, इट सेज रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड, बट रिड्यूस तो फंक्शन है, क्यों बोल रहे हैं डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि रिड्यूस ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है पाइथन में, तो यू नीड टू यूज सम एक्सटर्नल रिसोर्स। मतलब आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, कॉल्ड फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। तो ये लाइन इज नथिंग बट मॉड्यूल, और आप बोल सकते हो इसे पैकेज। तो ये हाँ लाइब्रेरी, तो फंक टूल नाम का एक पाइथन का फाइल है, उस फाइल में किसी ने रिड्यूस का लॉजिक लिखा है, और आप लोग क्या करते हो, वो रिड्यूस का लॉजिक आप यूज करते हो। जो लाइब्रेरी मॉड्यूल है वो हम कल देखेंगे, आई कैन शो यू प्रैक्टिकली कि उसे कैसे लिखा जाता है। ये ओरिजिनल फंक टूल का जो लॉजिक है वो कहाँ पे लिखा है, आई कैन डायरेक्टली शो यू, नॉट एन इशू। ओके, बट अभी के लिए इतना समझे कि ये किसी और ने लिखा है और हमें कॉपी करना है, और सेम ये लाइन हमने लिखा है, एंड देन इफ यू एग्जीक्यूट आपको आंसर आ रहा है, एडिशन हो रहा है 1 and 2 का। ओके, नंबर 1 नंबर 2, इसको मल्टीप्लाई करना है सारे नंबर्स का, ये नंबर्स में इतने सारे नंबर्स है, इसका एडिशन हुआ है, मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई लिखो यहाँ पे, ये वाला, सॉरी ये वाला, तो इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे। ओके, आई नो थोड़ा, दिस इज हाउ यू राइट फंक्शन, और लैम्डा फंक्शन विद 2 नंबर्स, 2 आर्ग्यूमेंट के साथ लिखना है तो ऐसे आपको लिखना पड़ता है। तो ये होता जनरली हाउ इट वर्क्स इज, ये एट अ टाइम 2 नंबर उठाता है, पहले एक इटरेटर 1 उठाता था तो 2 उठाता है, नंबर 1 में 3 जाएगा, नंबर 2 में 5 जाएगा, तो यहाँ पे उसका एडिशन होगा। ओके, इसका जो आंसर है, आंसर अभी एक जगह पे स्टोर होगा, उसमें 6 ऐड होगा, फिर ये आंसर में 6 ऐड होगा, फिर ये आंसर में 7 होगा, फिर ये आंसर में 8, तो इसमें से एक जो नंबर है उसमें ये आंसर आएगा, और ये अगला जो नंबर है इसमें ये इटरेटर आगे बढ़ेगा ऐसे 1 by 1 ऐसे। तो मैन्युअली आप लिखना चाहते हो तो आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, जैसे हमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया था, देखिए रिजल्ट करके, इसमें टेम्पररी स्टोर करके रखते थे सब आंसर, और 1 by 1 हम नंबर्स ऐड करते थे इसके ऐसे। ओके, सो इसको ही यहाँ पे पूरा ऑप्टिमाइज किया है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 एंड नंबर्स। क्लियर? ओके, आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो नॉट एन इशू, नॉट इमिडिएटली आपको ये एक्सपेक्ट करना इज बिट डिफिकल्ट, जैसे जैसे आप काम करोगे यू विल गेट हैंड्स ऑन, तो आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे लिखना है। बट यू शुड नो कि ऐसा कुछ होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन, उसका कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आंसर आता है, उसे आपको इटरेबल करना पड़ता है। ओके, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड फंक टूल्स, उसमें से रिड्यूस हम बाहर निकालते हैं। ओके, क्लियर? सो जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, ऑल दोस जो टॉपिक हमने कवर किए एज वेल एज दिस,
is good enough for you to start with Python programming. ये Python programming start करने के लिए आपको इतना sufficient है. Okay? Clear? कुछ solved example यहाँ पे लिखा है और इसका एडवांटेज ये है कि एक प्रोग्राम 4 या 5 तरीके से सॉल्व किया है. फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स. ओके, फाइंड इवन नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है. तो इसे देखिए, एक फॉर लूप यूज करके किया है. ओके, देन दूसरा फंक्शन यूज करके किया है. देन ओके, तीसरा फंक्शन यूज किया है बट डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखा है यहाँ पे. ओके, और फिल्टर यूज करके किया है. सो ऑल द 4 ऑप्शंस आर कवर्ड फॉर ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स दोनों के. सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे कहाँ पे यूज करना है, क्यों यूज किया है, कैसे यूज होता है, जो आपने अभी तक सीखा है. सो इट्स अप टू यू कि कौन सा अप्रोच आपको फॉलो करना है. आंसर सेम आएगा, कोई भी अप्रोच फॉलो करो आंसर सेम आएगा. रेगुलर फॉर लुकअप लिखो, कॉम्प्रिहेंशन लिखो, हायर ऑर्डर फंक्शन लिखो, ओके. क्लियर? सो इसीलिए बहुत सारे एग्जांपल लिखा है नीचे. 8 या 10 प्रोग्राम है, उसके प्रोग्राम ऑन उसके अलग अलग ऑप्शंस कैसे आप उसे लिख सकते हो. ओके, सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. इसमें कुछ डाउट है तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस. मतलब कोई प्रोग्राम आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे वर्क हो रहा है तो वी कैन डिस्कस इमीडिएटली इन द क्लास. बट आई वांट यू टू गो थ्रू ऑल द अप्रोच, क्योंकि हम डे 1 से अलग अलग चीजें सीख रहे हैं, अलग अलग अप्रोच से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि प्रोग्राम सॉल्व करने का एक ही अप्रोच नहीं है. यू कैन हैव योर ओन मेथड टू सॉल्व द प्रोग्राम. इसको प्रोग्रामिंग माइंडसेट बोलते हैं. जितना अच्छा आपका कॉम्प्रेस्ड ऑप्टिमाइज्ड माइंडसेट रहेगा उतना आपको इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट अ प्रोग्राम, और अच्छा भी प्रोग्राम आपका रन होगा. क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस, नो? ओके, आई नो आज का लेक्चर थोड़ा आपको हायर साइड पे लगेगा बट दैट इज द रिक्वायरमेंट. ओके, मतलब हायर ऑर्डर फंक्शन ऐसा नाम है तो डेफिनेटली यू वांट वी कैन सॉल्व, बट उसके लिए आपको फंक्शंस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए. फंक्शंस क्या करता है, राइट? इटरेटर क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए. जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं उसे क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है वो क्लियर होना चाहिए. देन ओनली यू कैन राइट दिस फंक्शंस. ओके, ओके, ओके. सो विल यू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम? देखिए, स्वैपिंग ऑफ नंबर और ये सारे प्रॉब्लम हमने क्लास में किए हैं. स्वैपिंग हो जाए, ऑड हो जाए, इवन आगे जाके पैलिंड्रोम का भी है. ओके, सो वी हैव सीन ऑल दिस प्रोग्राम्स. तो आपको कुछ इशू है तो वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट.